Good morning, students. Welcome to another lecture of microeconomics. Till date, we have studied or we have discussed the topics of what is microeconomics, introduction of microeconomics, its different theories, and what is the role of managerial economists and what are the objective of firms. Today, we are going to discuss the last topic of the Unit 1, that the relationship of microeconomics with other subjects or with other disciplines. So, my name is Ritu Singh, and let's start this lecture of microeconomics. So, here we are discussing the first unit of microeconomics introduction. Till date, we have discussed about what is economics, then what is microeconomics, what are the different scope and purpose of microeconomics and how it is significant in business decision making, commodity pricing, demand analysis, cost analysis, free market economy. Then we also discussed the difference between microeconomics and macroeconomics. Then we discussed different theories of microeconomics, its different assumptions, and then we discussed the supply and demand model of microeconomics. Then we discussed economic objectives of firms. And economic objective of firm is very important topic. A question is very much likely to come in exam. So pay attention while studying this and give a little more time on this topic. Then we discussed the role of managerial economist, how he affects the decisions of the firm and how he makes them. What are the factors which help him in making in decision making for the firm? So, the last topic for this unit is microeconomics relationship with other subjects. So, the under various heads in which we are going to study this is the relationship of microeconomics with economics, its relationship with the management theory and accounting, then microeconomics and mathematics and statistics, microeconomics with operations research, microeconomics with decision making, and microeconomics with computer science. So, first of all, first point which comes in mind, that what is the relationship of microeconomics with economics? Microeconomics is the study of economic behavior of individual firms and other such microorganisms, or we can say organizations. Economics make use to several microeconomic concepts such as marginal cost, marginal revenue, elasticity of demand, such as well as price theory and theories of market structure, to name only a few. So it deals with national income, level of employment, general price level, consumption, investment in economy, and different matters related to international trade, money, and public finance. So, when we talk about microeconomics relationship with economics, we have to understand that economics is the whole branch. Economics is a branch which divides into microeconomics and macroeconomics. Macroeconomics is a part which deals with the individual economic policies or economic policies related to individual organizations, individual firms, and individual households.
Microeconomics concepts such as marginal cost, marginal revenue, elasticity of demand, and theories of price and market structures deals with that micro part of economics. And when economics has to deal with the larger part, larger area, then it comes under macroeconomics. So here, economics is a main branch which provided a further diversification into microeconomics and macroeconomics. तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि इकोनॉमिक्स मेन ब्रांच है. इकोनॉमिक्स इज द मेन ब्रांच ऑफ स्टडी. देन इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वेरियस ब्रांचेस, जिसमें से एक ब्रांच आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है जो कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से डील करती है. फिर आपकी दूसरी ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो कि एक कंट्री के होल इकोनॉमिक लेवल्स, उसकी नेशनल इनकम, उसके लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से डील करती है. तो इकोनॉमिक एक ऐसी ब्रांच है जिसने माइक्रो इकोनॉमिक्स को जन्म दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स की फील्ड क्रिएट की और उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया और उसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से पढ़ाई की, उसमें कई सारी थ्योरीज फॉर्मुलेट की सो दैट दोज थ्योरीज कुड बी यूज्ड to to and for the welfare of the society. The next point is management theory and accounting. Microeconomics is influenced by the developments in management theory and accounting techniques. Accounting refers to recording of all the transactions of firms in record books, and the proper knowledge of accounting techniques is very essential for every firm and for every manager because profit maximization is the basic objective of the firm. So, microeconomics requires a proper knowledge of cost and revenue information and their classification. Therefore, a student of microeconomics should be familiar with the generation, generalization, interpretation, and use of accounting data. तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को रिलेट कर रहा है. नाउ इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ऑल द टाइप्स ऑफ कॉस्ट. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग आपस में इसलिए जुड़े हुए हैं, इसलिए रिलेटेड हैं क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के कई सारे फैक्टर्स और आगे आने वाले चैप्टर्स आपको ये हेल्प करेंगे कि कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं. और जब आप कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप अकाउंट बुक्स में ज़्यादा प्रॉफिट मेंटेन कर पाते हैं. अकाउंट बुक्स का जो ऑब्जेक्टिव है इज़ टू नोट ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ द फर्म, वो चाहे कितनी ही छोटी से छोटी या बड़ी से ही बड़ी ट्रांजैक्शन क्यों ना हो. और जब आप माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझ पाते हैं तो वो सारी जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हो रही हैं उनको प्रॉपरली कंट्रोल कर पाते हैं. द नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स. अब इससे पहले जो हमने ये अभी पढ़ा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग से माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, तो उसमें हमने ये ध्यान दिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी जो एक मेन फैक्टर है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है और अकाउंट बुक्स मेंटेन करते समय भी हमारा मेन फैक्टर या मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो. तो वो जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स हमें बैलेंस करने हैं, वो जो नंबर्स हमें चाहिए, सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर्स वी नीड, दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स. So what happens when there's a relationship between microeconomics and mathematics? The use of mathematics is very important for microeconomics as in view of its profit maximization goal along with optional use of resources. The major problem of the firm is how to minimize cost, how to maximize profit, and how to optimize sales. Mathematical concepts and techniques are widely used in economic logic to solve these problems. जब स्टूडेंट्स अपने इस कोर्स बीकॉम के कोर्स के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़ ही रहे हैं पर आपके सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट मैथ्स का भी है. नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स का गोल क्या है? उसका गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन.
माइक्रो इकोनॉमिक्स का गोल ये है कि वो मिनिमम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके और अपनी सेल्स को ऑप्टिमाइज कर सके. ऑप्टिमाइजिंग सेल्स इज ऑल्सो मीन्स दैट इज मैक्सिमाइजिंग सेल्स so that a rational number can be achieved for profit. तो कई सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसके मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को और उसके सुपरवाइजर्स को उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में और सेल्स को ऑप्टिमाइज करने में. अपने आगे आने वाली यूनिट्स में आप कई तरह के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई के न्यूमेरिकल्स, आप उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप पढ़ेंगे. ऑल दीज कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम मैथमेटिक्स. So these logics we have to use to solve the problems. The next is microeconomics and statistics. इससे पहले भी हमने बात की है कि स्टेटिस्टिक्स के कई सारे टूल माइक्रो इकोनॉमिक्स में अप्लाई होते हैं. स्टेटिस्टिक्स में कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे चैप्टर्स हैं जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अप्लाई हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू विल स्टडी फर्दर, जब आप डिमांड फोरकास्टिंग पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में, तो डिमांड फोरकास्टिंग में आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स लगाने हैं. दोज न्यूमेरिकल्स विल बी बेस्ड ऑन formulas of regression, correlation, chi-square. All these concepts come from statistics. And statistics is a branch of maths which helps us with all the figures, all the numbers which might occur in future. तो स्टेटिस्टिक्स मैथ्स की वो ब्रांच है जो कि कई सारे फॉर्मूले लगा के, फॉर एग्जांपल कोरिलेशन, रिग्रेशन, काई स्क्वायर, अनोवा, ये सारे फॉर्मूले लगा के ये डिटरमाइन करने की कोशिश करती है कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या नंबर्स हो सकते हैं. स्टेटिस्टिक्स में हम एक वेरिएबल एक्स एक्सिस पे लेते हैं और एक वेरिएबल वाई एक्सिस पे लेते हैं. जनरली इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सिंपल नंबर, और उसके बाद जो जनरल ट्रेंड चल रहा है, जो वॉट एवर ट्रेंड, पास्ट ट्रेंड चल रहा है, उसके बेसिस पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर ट्रेंड क्या होगा. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिमांड एंड सप्लाई के ट्रेंड्स को समझने के लिए स्टेटिस्टिक्स के कई सारे फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं. So, microeconomics needs tools of statistics in more than one way. A successful businessman must correctly estimate the demand for his products. यहाँ पे वही बात लिखी है जो हमने कही है कि सप्लाई और डिमांड के ट्रेंड को समझने के लिए, ये जानने के लिए कि अगले आने वाले समय में क्या डिमांड हो सकती है हमारे प्रोडक्ट की और उसकी हमें कितनी सप्लाई करनी है, ये हम स्टेटिस्टिक्स की हेल्प से डिसाइड कर सकते हैं. So, a businessman should be able to analyze the impact of variation in taste, fashion, changes in income on demand only when he can adjust his output. So, किसी भी डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर को कई सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं. भले ही हमने नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ इनकम और परचेजिंग पावर की बात की हो, बट किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड को फैशन सेंस, चेंज इन इनकम एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं. इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्टेटिस्टिक्स हमारी ये हेल्प करती है कि हम फ्यूचर का आउटपुट जान सकें, उसे एडजस्ट कर सकें और हम उसका कुछ अंदाज़ा लगा सकें और उसी हिसाब से हम अपनी सप्लाई चेन्स रन करें. Then, statistical method provide sure base for decision making. Thus, statistical tools are used in collecting data, analyzing them to help in decision making process. And also, microeconomics makes use of correlation and multiple regressions in related variables like price and demand to estimate the extent of independence of one variable on another. The theory of probability is also used in problems involving uncertainty. तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से कई सारे स्टेटिस्टिकल टूल्स हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ कर सकते हैं. हम पहले ही इस चीज़ को बार बार बोल चुके हैं, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि हम स्टैट्स के रिग्रेशन, कोरिलेशन फॉर्मूलेज अप्लाई करते हैं, एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंस चेक कर सकते हैं, और जब
अनसर्टेन कंडीशंस हैं जिन्हें हम नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं, तो हम उस केस में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. The next branch is ऑपरेशन रिसर्च. ऑपरेशन रिसर्च मैथ्स की या साइंस की वो ब्रांच है जो कि ये डिसाइड करने की कोशिश करती है कि कोई ऑपरेशन किस तरीके से ऑप्टिमाइज स्केल पे कराया जा सके, उसे रन कराया जा सके. तो ऑपरेशन रिसर्च में आप फॉर्मूले यूज़ करते हैं CPM के, PERT के, डिसीजन ट्री के, टू आइडेंटिफाई कि कौन सा प्रोसीजर बेस्ट रहेगा किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए. So, operation research provides a scientific model of the system, and it helps economists in the field of product development, material management, inventory control, quality control, marketing, and demand analysis. The very tools of operation research are helpful for managerial economists in decision making. तो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि ऑपरेशन रिसर्च एक तरह का साइंटिफिक मॉडल प्रोवाइड करता है सिस्टम में, जो कि इकोनॉमिक्स को हेल्प करता है कि वो उन्हें अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंटल स्टेज कैसे चलाना है, मटेरियल मैनेजमेंट कैसे करना है, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करना है, प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके से करना है, उसकी मार्केटिंग और डिमांड एनालिसिस कैसे करनी है. ऑपरेशन रिसर्च के में जो टूल्स यूज़ होते हैं उसके कुछ नाम मैंने आपसे भी बोले थे, CPM, PERT एनालिसिस एंड डिसीजन ट्री. ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में. फॉर एग्जाम्पल, इन डिसीजन मेकिंग an organization or a manager can decide which path to take. उसे कौन सा पाथ लेना है कि उसका प्रोडक्शन प्रोसेस एज सुन एज पॉसिबल पूरा हो सके कम से कम रिसोर्सेज में, और वो उसको प्रॉफिट भी प्रोवाइड कर सके. सो ऑल दीज कम्स अंडर ऑपरेशन रिसर्च. द नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड थ्योरी ऑफ decision making. Now, decision making for any firm, for any economist, is quite a hard task because there is a stress and pressure on the manager to make the right decisions, the decisions which are useful for the firm, the decisions which are profitable for the firm. तो ये बहुत ज़रूरी है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और डिसीजन मेकिंग थ्योरीज को आपस में रिलेट किया जा सके, सो दैट कि वो कंपनी के लिए बेस्ट प्रॉफिट इंश्योर कर सके. The theory of decision making is the new field of knowledge which has grown over the second half of this century. यानी 20th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ है, यानी कि 1960s के बाद डिसीजन मेकिंग थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ. Most of the economic theories explain a single goal of the consumer, goal for the consumer. That is profit maximization of the firm. But theory of decision making is developed to explain multiplicity of goals and lot of uncertainty. So 1950 से पहले या 1900s की स्टार्टिंग में जो किसी भी फर्म का मेन गोल होता था वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता था. वो कंज्यूमर पे इतना ध्यान नहीं देते थे. तब ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो सिंगल ओनरशिप के अंदर रहती थी. जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो एक सिंगल ओनर को ही बियर करना होता था. बट जब थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग डेवलप हुई तो इसने दूसरे फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करना शुरू किया और उसने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा दूसरे गोल्स पे भी ध्यान देना शुरू किया. और डिसीजन मेकिंग थ्योरी अनसर्टेन कंडीशंस में भी अप्लाई हो सकती है. So this new branch of knowledge is useful for business firms when they have to make quick decisions in case of multiple goals. So if you view this way, the theory of decision making is more practical and application oriented than the economic theories. तो 1900s and 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो इकोनॉमिक थ्योरीज थी वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड नहीं थी. वो ज़्यादातर आइडियल कंडीशंस पर डिपेंडेंट थी और दैट इज़ वाई उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता था. बट डिसीजन मेकिंग थ्योरी ने इस अप्रोच को, माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिजनेस डीलिंग की अप्रोच को प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन ओरिएंटेड बना दिया. देन द नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इन कंप्यूटर साइंस.
As we all know that computer science is a very important branch now. आज की डेट में कंप्यूटर्स बहुत ही हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। कंप्यूटर्स में इतने सारे ऐप्स आ चुके हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं कि वो हर तरह की बिजनेस एक्टिविटी का डेटा फीड करते हैं और उस डेटा के बेसिस पे अपने आगे के डिसीजंस बनाते हैं। देयर आर सेवरल सॉफ्टवेयर्स विच कैन डिटरमाइन सम फ्यूचर नंबर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वो बिजनेस के लिए फ्यूचर नंबर्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं, बस आपको एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यूज फीड करनी होती हैं। So computers have changed the world, the way of world functions, and economic or business activity is no exception. Computers are used in data, computers are used for account maintenance, computers are used for inventory. Computers are also used for stock controls. Computers are also used for stock supply and demand predictions also. So, the time or the job which used to take months or days to done by can be done in few minutes by the computers. Therefore, computer training and computers basic knowledge has become compulsory program for managerial economists and their trainees all over the world. तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर्स ने हमारी लाइफ कितनी आसान बना दी है और कंप्यूटर्स में जितने भी ऐप्स एंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्होंने हमारे काम को कितना ज़्यादा आसान कर दिया है। पहले हमें जो कैलकुलेशंस करने में कई बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, हमें कभी कभी उसमें दिन और कई महीने लग जाते थे कैलकुलेशंस को करने में, ये जानने में कि फ्यूचर में हमारी डिमांड क्या होगी, मेंटेनेंस हमें कैसे करना है, इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करनी है, स्टॉक कैसे मेंटेन करना है। ये सब काम करने में पहले बहुत ज़्यादा मैनुअल पावर खर्च होती थी, पर अब कंप्यूटर के डिफरेंट ऐप्स एंड सॉफ्टवेयर्स की वजह से यही सारे काम अब सिर्फ कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में हो जाते हैं। ऐसा होने से ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत ज़्यादा समय बच रहा है, उसका लेबर एक्सपेंस बच रहा है और वो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जल्दी कर पा रहा है। सो अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लिए कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। Now everyone has to have computer knowledge in order to work in an organization sufficiently. So computers ने हमारे काम को बहुत ही ज़्यादा efficient बना दिया है। So computer science is related to microeconomics also, because microeconomics में कई सारी चीज़ें हैं। हमें डिमांड फोरकास्टिंग करनी होती है, हमें ये पता करना होता है, हमें ये जानना होता है कि फ्यूचर में आगे आने वाले क्वार्टर में या हाफ ईयरली या नेक्स्ट एनुअल ईयर में कितनी डिमांड आने वाली है हमारे प्रोडक्ट की। तो उस केस में डिमांड फोरकास्टिंग के डिफरेंट फॉर्मूलेज लगाने के लिए, जिसमें कई सारे स्टैट्स के फॉर्मूले यूज़ होते हैं, कई सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज़ होते हैं, कंप्यूटर साइंस की जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अब वो सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलेज, सारे स्टेटिस्टिकल फॉर्मूलेज कंप्यूटर में भी फीड हैं सॉफ्टवेयर्स के फॉर्म में, और इस वजह से सारा काम काफ़ी आसान हो गया है। Therefore, every person who is working in an organization as a manager or as an economist has to have some basic computer knowledge. So this was all about the relationship of microeconomics with various subjects. Okay, ये सारी ही चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए और उससे जो अभी आपको नॉलेज मिल रही है उस नॉलेज के प्रॉपर एप्लीकेशन के लिए आपको उस सब्जेक्ट के रिलेशनशिप को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि मैनेजमेंट की पढ़ाई करते समय सारे सब्जेक्ट्स आपस में काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको अकाउंटिंग में भी हेल्प करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी आप का यूज़ आपके मैथ्स में भी होगा। देन आपका क्या कहते हैं, लेबर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो स्टडीज़ होती हैं, वो भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हेल्प करती हैं। सो these were the references you can see here which I used to prepare this lecture, and I used to prepare the notes for this unit. So the books which you can get for studying microeconomics can be Business Economics by H.L. Ahuja. It is published by S. Chand Publications.
Then also you can use a book by D.N. Dwivedi, Essentials of Business Economics. It is a very old book. It is a very well-known book, and it is used by a lot of people. Then I use some websites also to make notes for you, and use a couple of research paper also to make some relevant notes for you. सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड एवरी पार्ट. तो हम लास्ट में अपने इस यूनिट 1 के सारे पॉइंट्स को एक बार जल्दी जल्दी फिर से देख लेते हैं. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी. फिर आपने ये जाना माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है. उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है. देन उसका पर्पस क्या है, वाई वी नीड माइक्रो इकोनॉमिक्स इन आर बिजनेस. देन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे रिसोर्सेज को के अगेंस्ट डिसीजन लेने के लिए. माइक्रो इकोनॉमिक्स हर तरह की माइक्रो एनालिसिस करता है कंपनी के लिए, सो दैट वो उसके प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें. Then we also took a look on the differentiation between microeconomics and macroeconomics. तो हमको ये समझ में आया कि microeconomics इंडिविजुअल लेवल की स्टडी है एंड macroeconomics एज अ कंट्री या होल गवर्नमेंट लेवल की स्टडी है. माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी बॉटम्स अप अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल से बढ़ के पूरे ग्रुप पे जाते हैं. और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी टॉप डाउन अप्रोच है, क्योंकि यहाँ आप एक इकोनॉमी एज अ होल से स्टार्ट करते हैं और फाइनल इंडिविजुअल तक पहुँचते हैं. देन माइक्रो इकोनॉमिक्स में कई सारे टर्म्स हैं, उसकी कई सारी थ्योरीज हैं. डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. Then there are some technical assumptions of this study also, which we discussed. And then demand and supply model is very important, because पूरा microeconomics demand and supply factors पे ही dependent है. Then we studied the economic objectives of the firm. किसी भी फर्म का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं. जो सबसे पहला गोल और सबसे इम्पॉर्टेंट गोल है वो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है. फिर उसके बाद सेल्स मैक्सिमाइजेशन, मार्केट डोमिनेंस, सोशल कंसर्न्स, प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग एंड कोऑपरेटिव्स. ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको ध्यान से रिवाइज कीजिएगा. उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक था रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट. तो हमें ये जानना पड़ेगा, हमने अभी तक जितनी भी पॉइंट्स पढ़े, जितने भी फैक्टर्स पढ़े, तो हमें ये समझ में आ गया कि जितने भी ऑपरेशंस किसी भी फर्म में हो रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, वो सारे के सारे फंक्शंस एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट ही एग्जीक्यूट करता है. And then in last we discussed on the topic of relationship of microeconomics with various subjects. माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि वो उसकी ही ब्रांच है. इकोनॉमिक्स से ही माइक्रो इकोनॉमिक्स बना है. अकाउंटिंग में हम डिफरेंट लेवल पे सारी हर तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, एंड दोज ट्रांजैक्शंस डिटरमाइन हाउ द प्रॉफिट ऑफ फर्म इज गोइंग टू बी अफेक्टेड. देन हम डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मूलेज यूज़ करते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक वैल्यूज़ को जानने की कोशिश करते हैं. Then we use different formulas of statistics to determine the future of different demand and supply needed in our microeconomic environment. ऑपरेशन रिसर्च में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मेथड ऑफ ऑपरेशन, कौन सा पाथ ऑफ ऑपरेशन इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर सम माइक्रोइकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. फिर थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग एक प्रैक्टिकल एंड साउंड अप्रोच है माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए. एंड देन कंप्यूटर साइंस में यूज़ होने वाले कई सारे एप्स एंड सॉफ्टवेयर्स ये हेल्प करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को पूरा करने के लिए. वो उन इक्वेशंस को बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं जो पहले कभी मैनुअली बहुत ज़्यादा समय लेती थी, दिनों का और महीनों का. और ये एप्स एंड सॉफ्टवेयर्स माइक्रो इकोनॉमिक का एनवायरनमेंट में काफ़ी एक्यूरेट आंसर देते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स को हेल्प करते हैं करेक्ट डिसीजन मेकिंग में. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर first unit of microeconomics. I have shared all the notes and I've told you all the references also. तो आप अगर कुछ extra पढ़ना चाहते हैं, you can use all these references for your extra knowledge. And
If you have any questions regarding this chapter, regarding this unit, you can ask me whenever you want. Whenever you meet me, or you can send me questions on my email ID, and I will try to answer you as soon as possible. So, me, Ritu Singh, is going to sign off from this class, and I hope you understood the subject well. And if you have any queries, you can ask me whenever you need. I will be very happy to answer your questions. Okay, so thank you so much, students, for listening this patiently. I hope to see you again in next class for the next unit of microeconomics. Thank you so much, students.